S. Chan presents educational video lectures as per the new UGC CBCS curriculum. Absolutely free. Difficult science concepts made easy. Study anywhere, anytime. You are already aware about the conditions that were created by SARS-CoV-2, a virus that resulted in a global worldwide pandemic since 2019. A virus that originated somewhere in the Hubei province of China and then spread across all the countries, all the nations of the world, and that resulted in millions of deaths and still persisting. The class of virus to which it belonged was RNA virus. Welcome to S. Chand Academy. My name is Aditya and we'll be discussing about class of viruses which contain RNA as genetic material in this video. अब तक हम बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर के वीडियोस में वायरस के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस एंड देन क्लासिफिकेशन. उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो था दैट वाज ऑन डीएनए वायरसेस एंड दिस इज थर्ड इन द सीरीज which will be on RNA viruses. If you want to read more about these topics, you can refer to these books of S. Chand Publishing, and if you don't have hard copies of these books, you can go to the description box below and you can find link for ebook. तो आइए शुरू करते हैं RNA वायरसेस के बारे में अपना डिस्कशन. DNA वायरसेस के बारे में आपने देखा कि उनका जेनेटिक मटेरियल DNA होता है और उस पिछले वीडियो में मैंने आपको DNA और RNA के बेसिक स्ट्रक्चर में डिफरेंस भी बताए थे. RNA जिसमें कि राइबोज शुगर में डीऑक्सीजनेशन नहीं होता है, सेकंड कार्बन पर अभी भी देयर इज स्टिल OH इज कॉल्ड एज राइबोज शुगर एंड राइबोज शुगर कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड्स आर कॉल्ड एज राइबोन्यूक्लिक एसिड्स. उनको हम RNA कहते हैं. तो RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग भी हमने बात की थी कि RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस स्टेट दैट RNA वाज इनिशियल मटेरियल और ओरिजिनल मटेरियल दैट वाज प्रेजेंट इन द बायोमोलिक्यूल्स during the early origin of life or evolution of life. So somewhere these viruses can be considered as ancient. Now why suddenly new viruses emerge? कैसे नए वायरस आ जाते हैं अचानक से? There may be two possible reasons. These viruses may be harbored in a pool which was not a suitable host, or they were present in conditions which were not making them to directly contact with a host. या तो ये वायरस ऐसी जगह प्रेजेंट हो जहाँ इनका होस्ट से कभी कांटेक्ट ना हो पाए, या फिर ये किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हो जो उनका रिप्रोडक्टिव होस्ट नहीं है. बट सडनली व्हेन दीज वायरसेस मेक कांटेक्ट विद ह्यूमंस एंड इफ ह्यूमन इज अ होस्ट फॉर देम, अ सूटेबल होस्ट फॉर देम, दे स्टार्ट टू स्प्रेड. एट द सेम टाइम दूसरी इंपॉर्टेंट बात RNA वायरस के बारे में ये भी है, कंपेयर टू DNA वायरसेस दे हैव हायर रेट ऑफ म्यूटेशन. इनमें जो चेंजेस होते हैं, जो बदलाव आते हैं इनके जीनोम में बाय द सेलेक्टिव प्रेशर ऑफ द एनवायरनमेंट, दे आर मच मोर प्रोनाउंस्ड देन DNA वायरसेस. सो जिस रेट से DNA वायरस अपने आप को बदलते हैं जनरेशन बाय जनरेशन, उसके कंपैरिजन में RNA वायरस अपने आप को और जल्दी बदल पाते हैं. इसके पीछे का एक रीज़न ये भी है कि जो एंजाइम RNA को रेप्लिकेट करता है उसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी की कमी होती है. DNA रेप्लिकेटिंग एंजाइम्स, अगर कोई गलती हो जाती है, DNA बेस में कोई एरर हो जाती है, तो उस एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं. बट इफ देयर इज एन एरर इन रेप्लिकेशन ऑफ RNA, then there are less chances that it will be recovered, and that leads to mutations. So they have relatively higher rate of mutation. With this, we will again look at some fundamentals of RNA, and then we will move on to the types of RNA viruses. So the first thing that you should know about RNA, which is also described to you from the previous video, पिछले वीडियो में भी आपको डिस्क्राइब की गई थी, RNA will contain ribose sugar, and they will of course have nucleotides, they will have phosphates, and to the third carbon next nucleotide may be added. अगला nucleotide add हो जाएगा, and that will give rise to a series or a polymer which will be called as ribonucleic acid. Now one thing you should understand while we are classifying RNA viruses is that central dogma of molecular biology, which I think talked about a number of times in my videos, कई बार उनके बारे में चर्चा की है. DNA can transcribe into a single stranded complement called RNA, which we often call
messenger RNA that takes up the message which is stored as genetic information in DNA. DNA में छुपी हुई genetic information को RNA के फॉर्म में ट्रांसक्राइब किया जाता है और वो RNA इवेंचुअली फिर प्रोटीन बनाता है. द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन. तो ये जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है इंफॉर्मेशन का, जिससे फिनोटाइप या ट्रेड्स या कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं, उसको हम सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं. डीएनए खुद भी रेप्लिकेट हो सकता है बाय एन एंजाइम कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज, एंड डीएनए को एमआरएनए बनाने वाला एंजाइम जो है दैट इज कॉल्ड एज आरएनए पॉलीमरेज. So RNA polymerase and DNA polymerase collectively transform this information, and then this RNA with the help of a machinery called ribosome, उनकी मदद से और tRNAs की मदद से, जो कि वर्कर्स हैं प्रोटीन बनाने के लिए, ट्रांसलेशन के प्रोसेस को पूरा करता है. लेकिन जिन ऑर्गेनिजम्स में RNA ही जेनेटिक मटेरियल होगा, उनमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी. एक तो RNA से RNA बनाने की, क्योंकि किसी एक वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए अपना जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करना पड़ेगा. सो RNA से RNA पॉलीमरेज बनाने के लिए, RNA बनाने के लिए यू विल रिक्वायर एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, RDRP. सो दैट इज वन ऑफ द वेरी कॉमन फीचर ऑफ एवरी RNA कंटेनिंग वायरस. हर एक RNA वायरस के अंदर RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज के लिए जीन होता है, इनकोड करता है, जो कि उस एंजाइम को बनाता है और उस एंजाइम की मदद से RNA का रेप्लिकेशन हो पाता है, RNA के नए मॉलिक्यूल बन पाते हैं. लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में, कुछ वायरसेस में, कुछ RNA कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स में RNA टू RNA ना बनकर ऐसा भी हो सकता है कि RNA से DNA बने, जिसकी डिस्कवरी टेमिन एंड बाल्टीमोर ने की थी, जो प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है. That is from RNA to DNA. So this reverse transcription process is catalyzed by an enzyme called reverse transcriptase. So generally we classify RNA viruses either on the basis of the kind of phenomena they carry out, क्या उनमें RNA से ही RNA बनता है, या फिर उनमें RNA से पहले DNA और DNA से फिर रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू नए वायरस बनते हैं. तो ये वाली तो एक अलग ही क्लास हो जाती है जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, और उस क्लास को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कंटेनिंग वायरसेस या RT वायरसेस. फॉर एग्जाम्पल, a very prominent example is HIV, human immunodeficiency virus that is associated with HIV/AIDS. तो वो तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला वायरस है. लेकिन इसके अलावा जो RNA कंटेनिंग वायरस हैं, जो खुद अपना RNA रेप्लिकेट भी करते हैं, उसके अंदर भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. एक RNA वायरस की जो पॉसिबिलिटी है दैट इज कॉल्ड एज प्लस RNA viruses, and the second one is called as minus RNA viruses. So I'm talking about those viruses which are not reverse transcription mediated viruses. Normal virus RNA viruses के दो टाइप है, प्लस एंड माइनस. Now what does that plus and minus mean? इसको समझने के लिए आप जानते हैं कि DNA का जो रेप्लिकेशन है, DNA से RNA बनता है. लेकिन अब RNA जब बनेगा तो इनमें से किसी एक स्ट्रैंड से ही तो बनेगा. उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा वो कोई एक ही होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर ATGCA लिखा है, तो इस वाले स्ट्रैंड को, यानी कि ऊपर वाले स्ट्रैंड के अगेंस्ट अगर RNA बन रहा है, तो इस स्ट्रैंड का A की जगह क्या लग जाएगा? T लगना चाहिए, U लग जाएगा. T की जगह A लग जाएगा, G की जगह C लग जाएगा, C की जगह G लग जाएगा, A की जगह T के बजाय U लग जाएगा. तो ये सीक्वेंस होगा RNA सीक्वेंस, जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा. तो एक जिसके अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंट्री RNA बनता है, विच इज़ रेडी टू मेक प्रोटीन, ये अब प्रोटीन बनाने के लिए रेडी है. ये तो एक टाइप का कोडिंग सीक्वेंस हो गया. इसका कॉम्प्लीमेंट्री DNA स्ट्रैंड ऐसा है. अब यही सिचुएशन मान लीजिए कि RNA में एग्जिस्ट करती है. एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें RNA का जो सीक्वेंस है, लेट्स से दैट इज UACGU. इफ दैट इज द सीक्वेंस दैट इज रेडी टू मेक प्रोटीन, तो जैसे ही ये RNA होस्ट के अंदर जाएगा, ये तुरंत प्रोटीन बनाने लगेगा. इट विल नॉट नीड एनी अदर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड टू बी सिंथेसाइज. इसके जो कोडॉन है वो इस प्रोटीन के अमीनो एसिड्स के लिए इनकोड कर रहे होंगे. सो दिस इज कॉल्ड एज सेंस स्ट्रैंड RNA.
ऐसे वायरस जिनमें इस तरह का आरएनए है जो सीधे प्रोटीन बना सकता है वो सेंस स्ट्रैंड आरएनए कहलाते हैं, प्लस आरएनए वायरसेस कहलाते हैं। लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें ये आरएनए इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज एन आरएनए दैट कंटेन इंस्टेड ऑफ यू इट कंटेन्स ए, instead of A it contains U, then here instead of C it contains G, then contains C, instead of U it contains A. But if this directly translates, अगर ये directly translate हो जाएगा तो इस तरह का प्रोटीन नहीं बना पाएगा। जो प्रोटीन सेल के लिए रिक्वायर्ड है, जो प्रोटीन वायरस के लिए रिक्वायर्ड है, उसको एनकोड करने वाला आरएनए नहीं है उस वायरस के अंदर, बल्कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो पहले प्रोटीन बनाने से पहले इसको एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी एंड दैट विल बी आइडेंटिकल टू दिस UACGU, तब जाकर प्रोटीन बनेगा। सो दे कैन गिव राइज टू आरएनए टू प्रोटीन डायरेक्टली, बट दीज RNA molecules, which are negative strand RNA molecules, they will first make RNA to a complementary RNA and then they will give rise to protein. So that's why this is called as negative strand RNA, क्योंकि negative से एक और complementary बनेगा, this will be a positive strand RNA now and then it will make protein. But those viruses which can have RNA that can directly encode protein, they will be called as positive strand RNAs. तो आई होप आपको क्राइटेरिया समझ आ गया, बेसिस समझ आ गया कि आरएनए वायरस को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। आइदर दे विल बी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस और दे विल बी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स और वायरसेस, एंड विद इन द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस दे कैन बी आइदर प्लस स्ट्रैंड वायरसेस और माइनस स्ट्रैंड वायरसेस, and the fourth class that will be entirely different, that will be reverse transcription based RNA viruses, which will mediate the process of translation by making DNA from RNA. पहले RNA से DNA बनाएंगे, फिर DNA से दोबारा RNA बनेगा और तब प्रोटीन बनेगा। तो चार अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं RNA वायरसेस की। Let's see with the help of some examples, कुछ एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। Examples of single stranded RNA molecules which have plus strand. A very prominent example, coronavirus, which you already know much about that. It is an enveloped virus which is helical and that causes human common cold, respiratory diseases. Then another is called as picornavirus. It is naked, does not have envelope and it has icosahedral shape. इसकी symmetry जो है icosahedral होती है। इसमें एक बहुत ही prominent example है पोलियो वायरस, जिससे कि पोलियो जैसी बीमारी होती है जो नर्वस सिस्टम की बीमारी है और उसमें हम अपने ऑर्गन्स को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते हैं, फंक्शन नहीं करते हैं। देन टोगा वायरस विच रिजल्ट्स इन अ डिजीज़ कॉल्ड एंसेफेलाइटिस, जो एक ब्रेन की डिजीज़ है, वो भी एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस का। देन कम्स माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस, नेगेटिव स्ट्रैंड जिनमें होता है, यानी कि पहले कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनेगा फिर प्रोटीन बनेगा। उनके एग्जाम्पल्स हैं रेब्डो वायरस, ऑर्थोमिक्सोवायरस एंड पैरामिक्सोवायरस। सो these viruses, among these are prominent examples like rabies virus. आपने rabies देखा होगा, कुत्तों के काटने से जो बीमारी हो जाती है, and the people are usually die after this rabies infection. That's a lethal disease. In fact, influenza जो COVID-19 है, SARS-CoV-2. Okay, there is another category called coronavirus. They contain corona or an outer cover on the virus, that's called collectively coronavirus category. But SARS-CoV-2 of the respiratory syndromes or influenza, that belongs to a family called Orthomyxiviridae. इस family को belong करता है। Then after negative strand viruses there are double stranded RNA virus also, और इसमें सबसे prominent example है रियो वायरस का। रियो वायरस नेकेड होते हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई अलग से एनवेलप नहीं होता है और आइकोसाहेड्रल सिमेट्री वाले होते हैं। रियो वायरस अपने आप में एक वायरस फैमिली भी है जो कि एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स क्रिएट कर सकती है। देन द अनदर कैटेगरी इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस विच कैन रिवर्स ट्रांसक्राइब। तो आरटी यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वायरसेस, उनमें से सबसे कॉमन जो एग्जांपल है आप ऑलरेडी जानते हैं, उसके बारे में मैंने बताया भी, HIV. HIV is a reverse transcription virus. So we will look at the diversity of RNA viruses. You can also see the differences in the shape and size. इनके shape और size में भी आप difference देख सकते हैं। In fact जो ऑर्थोमिक्सोवायरिडी का कोरोना वायरस है, जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, अभी उस चीज़ से परेशान है, entire world is experiencing the pandemic. That virus is also
RNA वायरस एंड दैट कंटेन्स एन आउटर कवर, उसके चारों तरफ एक आउटर कवरिंग होती है जिसकी वजह से कोरोना यानी कि क्राउन, चारों तरफ एक कोरोना है, कवर है, इसलिए इसको कोरोना वायरस भी कहा जाता है, लेकिन वो पुराना नॉमेनक्लेचर है. कोरोना वायरस इज अ जनरल क्लास दैट वाज नोन सिंस 1930s or so. But this new variant which is responsible for COVID-19 that is correctly called as SARS-CoV-2, इसका जो WHO के थ्रू रिकग्नाइज्ड नाम है वो कोरोना वायरस नहीं बल्कि SARS-CoV-2 होना चाहिए. सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम करने वाला CoV-2 कोरोना वायरस वेरिएंट 2 which appeared for the first time in 2019. So this has genetic material inside it, इसमें RNA present होता है and of course it has several proteins in the outer region, and one of the major protein, one of the prominent protein that is called as spike protein, इसके चारों तरफ spike निकले रहते हैं और वो spike हैं जो कि ह्यूमन की nasal cells में, नाक के रास्ते ये एंटर करता है. वहाँ पर present कुछ cells में प्रोटीन्स होते हैं ह्यूमन सेल के अंदर जिनको हम ACE2 कहते हैं. दे आर रिलेटेड विद एंजियोटेंसिन पाथवे. सो उस ACE2 से ये बाइंड करते हैं, इसीलिए कभी कभी कोविड-19 के सिम्टम्स में लॉस ऑफ स्मेल भी है दैट इन्फेक्ट्स दिस योर ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स एंड अफेक्ट्स द ऑल्फैक्टरी सेल्स, जिससे सेंस ऑफ स्मेल भी खत्म हो जाता है. सो एनीवेज माय पॉइंट इज देयर इज अ ह्यूज डाइवर्सिटी इन RNA वायरसेस in terms of shape, in terms of size. Majority of them are spherical, some of them have icosahedral symmetry. कुछ के ऊपर envelope होता है, कुछ के ऊपर envelope नहीं होता है. At the same time, these viruses, they also represent different sizes. COVID-19 का जो वायरस है, जो कोरोना वायरस है, that is relatively bigger than other viruses. In fact, इसका जीनोम भी काफ़ी बड़ा होता है. Compared to other viruses, it is 4 to 5 times bigger. ये करीब करीब एट मैक्स 32 किलो बेस पेयर यानी कि 32,000 बेस पेयर का भी बना हो सकता है. अब तक 35 अलग अलग स्पीशीज़ डिस्कवर की गई हैं, पता लगाई गई हैं और उसके अलावा बहुत सारे वेरिएंट्स भी हैं. आपने न्यूज़ में अक्सर सुना होगा डेल्टा वेरिएंट, अल्फा वेरिएंट. सो दीज आर डिफरिंग ड्यू टू द चेंजेस इन द जीनोमिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस वायरस. But historically we know many more viruses which have RNA. हम और भी कई वायरसेस के बारे में अब तक जानते हैं. जो RNA वायरसेस हैं उनके अंदर RNA होता है और उनमें से बहुत सारे वायरसेस और भी कई deadly diseases करते हैं. Some of them have resulted in pandemics in past as well. So we will talk about some of the prominent examples of RNA viruses. RNA viruses के कुछ prominent examples की मदद से हम उनके लाइफ साइकिल, उनके स्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल देखेंगे जस्ट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. Hello everyone, I am Dr. Seema Thakran. In semester 1, we covered limit and continuity, differentiability, asymptotes, tangents and normals, curve tracing. Now in semester 2, I will be covering differential equations and partial differential equations. There are number of differential equations, so we'll be learning how to find solutions for particular differential equations. Then we'll come to partial differential equations, and this topic is very important. If we see the applications, real life applications of this differential equation and partial differential equations, one of the applications are like circuits. We have any circuit we can write in a form of a differential equation and then we can solve the circuit. Then Newton's law of cooling is completely based on differential equations. Then coming to heat flow, that is also completely based on differential equations. Stay connected with S Chand Academy. Don't forget to share, like and subscribe S Chand Academy, and don't forget to press the bell icon also for the future updates. Thank you. वेलकम बैक टू एस चांद अकेडमी. ब्रेक से पहले हम जनरल डिस्कशन कर रहे थे RNA वायरस के बारे में. हमने उनका क्लासिफिकेशन स्कीम और बेसिकली प्लस और माइनस स्ट्रैंड के बारे में डिफरेंसेस की बात की और ये देखा कि किस तरह से RNA वायरसेस को क्लासिफाई किया जा सकता है. नाउ हियर आर फ्यू एग्जांपल्स, कुछ प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं RNA वायरस के. वन ऑफ देम इज पिकोना वायरस. दिस इज अ पॉजिटिव स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस. अब आप जानते हैं प्लस और माइनस का क्या मतलब है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. सो दिस वायरस, पिकोना वायरस, इज
अ नेकेड आई मीन नॉन एनवेलप्ड, इसके ऊपर एनवेलप नहीं होता है, ये एक नॉन एनवेलप्ड वायरस है। और इसका शेप जो होता है एज आई टोल्ड यू छोटी छोटी यूनिट्स का बना है और इसमें भी आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है। दिस हैज गॉट आइकोसाहेड्रल सिमेट्री। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रोटोमर्स जिन्हें हम कह सकते हैं, जो प्रोटीन्स हैं, यू कैन सी हियर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, VP1, VP2, VP3 एंड VP4। ये सारे प्रोटीन इसको इनकेस करके रखते हैं, इस कैप्सिड के अंदर इनकेस करके रहता है ये, एंड द जेनेटिक मटेरियल और RNA इज डीप इनसाइड इट। नाउ दिस वायरस इज नोन टू कॉज सेवरल डिजीजेज। ये वर्टिब्रेट को इन्फेक्ट करता है इंक्लूडिंग फिश और बहुत सारे कैटल्स। एक कॉमन डिजीज के बारे में आपने सुना होगा एनिमल्स में, फुट एंड माउथ डिजीज। एक्चुअली इस वायरस के इन्फेक्शन से जो एनिमल्स हैं, जो कैटल्स हैं, उनके पैरों में सेल्स डैमेज होने लगती हैं, मरने लगती हैं, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पस इन द सेल्स। सो एनिमल्स आर अनेबल टू वॉक एंड दे ऑल्सो हैव सिमिलर काइंड ऑफ सिम्टम्स इन द माउथ। दैट्स व्हाई इट बिकेम पॉपुलर एज फुट एंड माउथ डिजीज। सो फुट एंड माउथ डिजीज का जो वायरस है, पिकोरना वायरस, दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ positive strand RNA viruses which make entry into the animal cell through the environment। जो contaminated organisms हैं उनके through ये animals में entry लेता है, and at the cellular level you can see how the entry take place। This is an infectious viron। Let me remind you, viron is a virus when it is present outside the body of host। जब host के अंदर कोई चीज़ है, वायरस पहुंच गया तो उसे वायरस कहा जाता है, लेकिन जब तक वो बाहर है, जब तक वो नॉन लिविंग की तरह है, तब तक उसको वायरॉन कहते हैं। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरॉन। सो दिस इन्फेक्शियस वायरॉन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट। होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में आता है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट होते ही विद द हेल्प ऑफ द सरफेस प्रोटीन्स ऑफ दिस वायरस एंड सम ऑफ द रिसेप्टर्स इन द सेल दैट क्रिएट्स अ कोटेड पिट। एक गड्ढा सा बन जाता है, उस कोटेड पिट में कुछ प्रोटीन्स हैं जो इंटरैक्ट करते हैं। देन दोज कोटेड पिट विल इम्प्लांट दिस वायरस एंड फ्रॉम दिस वायरस प्रोटीन विल नॉट गो इनसाइड बट न्यूक्लिक एसिड और RNA विल पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल। जो एनिमल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके थ्रू ये RNA सेल के अंदर चला जाएगा। एंड यू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? इसके बाद क्या होगा? दिस RNA विल मेक यूज ऑफ द मशीनरी ऑफ होस्ट। ये होस्ट की मशीनरी यूज करेगा, RNA से और RNA बनेगा by using RNA dependent RNA polymerase, and this RNA will make proteins, and those proteins will be mostly the protein structural components, nucleocapsid यानी कि न्यूक्लियर DNA, न्यूक्लियर RNA और उसके प्रोटीन को जोड़कर ये नए वायरस पार्टिकल्स बनाएगा which will be released out subsequently from the cell। और धीरे धीरे इससे क्या होगा कि सेल के रिसोर्सेज यूज होंगे, सेल के अंदर वायरस ज़्यादा हो जाएंगे, मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड होगा, सेल्स विल स्टार्ट डाइंग एंड दैट विल रिजल्ट इन वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेस। सो दिस इज हाउ इट हैपन्स विद मोस्ट ऑफ द RNA वायरसेस। ज़्यादातर RNA वायरसेस इसी तरह से काम करते हैं। यू कैन लुक हियर द एंटायर लाइफ साइकिल एज वेल। अगर हम लाइफ साइकिल को और डिटेल में देखें तो जैसा कि मैंने बताया कि सेल रिसेप्टर की मदद से ये वायरस अंदर जाते हैं, वायरस का जेनेटिक मटेरियल केवल अंदर जाता है, प्रोटीन इज़ लेफ्ट आउट इनसाइड। सो कुछ रिस्पॉन्स एलिमेंट्स होते हैं वायरस के रिस्पॉन्स एलिमेंट, और वो डायरेक्टली प्लस RNA जो है उस पर राइबोसोम बाइंड हो जाते हैं। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे और वो राइबोसोम सीधे सीधे नए वायरल प्रोटीन्स बनाने लगते हैं। और उन्हीं में से क्या होता है, उन्हीं वायरल प्रोटीन्स में से कुछ प्रोटीन होते हैं जो RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज बनाते हैं। अब ये RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज इस वायरस के RNA को रेप्लिकेट करता है, बहुत सारी कॉपीज़ बनाता है। तो हमारे पास दोनों चीज़ें हो गई, RNA की बहुत सारी कॉपीज़ बन गई और इधर बहुत सारे प्रोटीन बन गए जो कि इस वायरस का सरफेस बनाएंगे। सो दीज थिंग्स, ये सारे जो RNA के मॉलिक्यूल हैं और साथ ही साथ प्रोटीन है, ये आपस में जुड़ जाते हैं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि वायरस को क्रिएट होने के लिए कोई एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसे फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। सिंपली द कंपोनेंट्स कैन बी मिक्सड एंड दैट विल गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से सारी चीज़ें बनी और ये असेंबल हो गई अपने आप। इट्स लाइक प्रोटीन फोल्डिंग प्रोसेस, जैसे स्पॉन्टेनियसली प्रोटीन फोल्ड हो जाता है, थर्मोडायनेमिकली गवर्न होता है, वैसे ही प्रोटीन के जो वायरस के प्रोटीन्स हैं वो भी असेंबल हो जाते हैं और असेंबल होने के बाद सेल से बाहर रिलीज हो जाते हैं एंड देन दे आर रेडी टू इन्फेक्ट मैनी अदर सेल्स।
और भी बहुत सारी सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए ये तैयार होते हैं। सो इफ़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय इम्यून सिस्टम, अगर इनको गार्ड नहीं किया गया, इन बढ़ते हुए वायरसेस को नहीं रोका गया, दे विल इवेंचुअली स्प्रेड आउट एंड दे विल इन्फेक्ट एज मेनी एज सेल्स एज दे कैन। लुकिंग इनटू अनदर एग्जाम्पल, एक और बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल आपने रेबीज़ के बारे में सुना होगा, विच इज़ कॉज्ड बाई बाइटिंग ऑफ द डॉग। जब किसी को कुत्ते काट लेते हैं तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं ना इंजेक्शन लगवाने के लिए। व्हाट फॉर दैट इंजेक्शन इज़ गिवन, उस इंजेक्शन में क्या होता है और उस इंजेक्शन से कैसे रेबीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं, वो पर्सन की लाइफ कैसे सेव की जा सकती है। तो ये जो रेबीज़ है, दिस इज़ कॉज्ड बाई अ वायरस, दिस इज़ ऑल्सो RNA वायरस, ये भी RNA वायरस है। और आप देख सकते हैं दिस इज स्लाइटली फिलामेंटस, इसके आउटर कवर में कई सारे प्रोटीन हैं, जैसे M प्रोटीन, G ग्लाइकोप्रोटीन, ये सब स्पाइक के फॉर्म में प्रेजेंट होता है ओवर दी लिपिड्स, मेम्ब्रेन लिपिड्स। एंड इनसाइड द सेल, इसकी जो सेल है, इसका जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, और वो जेनेटिक मटेरियल हेलिकल RNA है। एंड दिस इफ़ यू लुक फ्रॉम द टॉप, ये तो साइड व्यू है, ये आप टॉप से देखेंगे तो ये स्फेरिकल लगता है, तो टॉप से स्फेरिकल है, लेकिन वैसे इलोंगेटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर है ये। सो दीज वायरसेस आर ऑफन फाउंड हार्बर्ड इन दी एनिमल्स लाइक डॉग्स, एंड नॉट ओनली डॉग्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि केवल कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, यू आर मिस्टेकन। This can be spread by many other animals. All the animals which harbor this virus are called as rabid animals, and that can include even a squirrel, a horse. घोड़े के काटने से भी रेबीज हो सकता है, स्क्विरल के काटने से भी हो सकता है। There are many more organisms which can harbor this. But not all the time. ऐसा नहीं है कि हर डॉग के सलाइवा में रेबीज वायरस होता है, हर हॉर्स के सलाइवा में रेबीज वायरस होता है। It is present in high titer in those organisms which are already infected by this virus. So what happens? This virus can enter into the cell when these organisms bite. अगर superficial saliva कहीं लग गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके हाथ में कोई घाव है, पहले से कोई वूंड है, और वहाँ पर एक रेबिड डॉग का सलाइवा लग गया है, वो आपको सिर्फ लिक कर रहा है, इट इज़ नॉट बाइटिंग यू, आपको डॉग ने काटा भी नहीं है, आपको लग रहा है कि कोई पेट डॉग है उसके साथ बैठे हैं और उसने उस सलाइवा भी लग गया और आपके हाथ में या किसी बॉडी पार्ट में वूंड है, तो वहाँ से भी वो वायरस क्या कर सकता है, दैट कैन मेक एन एंट्री। एंड द मोमेंट इट मेक्स एन एंट्री, द फर्स्ट स्टेप विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज वायरसेस इनसाइड द सेल, क्योंकि वो जहाँ वूंड होगा वहाँ पर कट लगा होगा और ब्लड के रास्ते वो शरीर में सब जगह फैल सकता है। अब उसको जहाँ एक्सेस मिलेगी, विच एवर सेल इट फाइंड सूटेबल, इट विल बी एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, अटैच हो जाएगा, और अटैचमेंट के बाद फिर रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होगी। उस वायरस के ऊपर प्रेजेंट जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो हमारी सेल पहचान लेंगी, और उसके बाद ये वायरस पेनिट्रेट करके उस सेल के अंदर एंट्री कर लेगा। और जब ये वायरस एंट्री कर लेगा, देखिए यहाँ पर डिफरेंस है, हमने बात की थी अभी पिछले वायरस की, तो वहाँ देखा कि वो इट बाइंड्स एंड देन इट रिलीजेस RNA अलोन। हियर द एंटायर वायरस इज बीइंग इनगल्फ्ड, पूरा वायरस इनगल्फ हो रहा है, एंड द प्रोटीन पार्ट और एनवलप पार्ट इज बीइंग डिग्रेडेड बाय एंजाइम्स। कई सारे एंजाइम इसके प्रोटीन पार्ट को डिग्रेड कर दे रहे हैं। सो आफ्टर पेनिट्रेशन देयर विल बी अनकोटिंग, एंड व्हेन RNA विल बी फ्री, जब ये RNA रिलीज हो जाएगा, जब ये RNA फ्री होगा, तो वही प्रोसेस होगा जो आपने अभी पिछले वायरस के केस में देखा। इट विल स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होगा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनेंगे, और उन्हीं में से कुछ RNA रेप्लिकेटिंग प्रोटीन्स भी बनेंगे, दैट विल रिजल्ट इन अ लॉट ऑफ वायरस पार्टिकल्स, बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स बनेंगे, एंड दैट विल इवेंचुअली बी रिलीज। प्रोसेसिंग और एप्लीकेशन के बाद इनकी असेंबली होगी, और असेंबली के बाद ये वायरसेस बर्ड्स के फॉर्म में उस सेल से धीरे धीरे निकलते चले जाएंगे, एंड दे विल स्टार्ट इन्फेक्टिंग अदर सेल्स। So gradually these will infect a lot of cells in the body. Rabies जो है बहुत सारी cells को infect करेगा, and that can eventually be lethal. वो death भी cause कर सकता है if remain untreated. Now what rabies drugs or rabies vaccines contain? Majority of them, like immediately जो बाद में दिया जाता है injection, they often have antibodies which are preformed against rabies virus. तो जो दवाई दी जाती है, जो इंजेक्शन लगाया जाता है, उसमें आप समझ सकते हैं कि रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हैं जो कि इस रेबीज़ वायरस के अगेंस्ट बनाई गई हैं। दे विल बाइंड विद दिस रेबीज़ वायरस, एंड दीज एंटीबॉडीज़ कैन न्यूट्रलाइज वायरस।
Since it replicates very rapidly, it is not easy for the body to defend by its own immune system. So artificially synthesized antibodies outside the bodies, they can be injected as a passive immunization and they can prevent happening of rabies. रेबीज़ होने से बचा सकती हैं अगर ये एंटीबॉडीज़ टाइमली मैनर में इंजेक्ट कर दी जाती हैं. सो द प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन. वी पिक अप और वी टेक अप दीज रेबीज़ वायरसेस फ्रॉम द फ्लोइंग ब्लड. प्लाज्मा से ही हम इनको पिकअप कर लेते हैं एंटीबॉडीज़ की मदद से, एंड दीज एंटीबॉडीज़ आर देन एनगल्फ्ड बाय मैक्रोफाजेस. हमारे शरीर में प्रेजेंट मैक्रोफाजेस एंड एंटीबॉडीज़ को खा जाती हैं और ये वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो इसको रिप्रोड्यूस होने से बच जाता है. अगर ये एक बार सेल्स में पहुंच गया, इन्फेक्शन करने लगा, सो इट इज़ लाइकली दैट अ पर्सन विल डाई विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स. सो दैट इज़ व्हाट रेबीज़ वायरस डज, एंड इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ RNA वायरस. ये भी RNA वायरस का एक एग्जाम्पल है. नाउ वन अदर वेरी क्रूशियल एंड very talked about virus is HIV. You must have known about human immunodeficiency virus or HIV that results in a disease called AIDS. This virus is generally transmitted by sexual intercourse or by infected needle. ये blood के through किसी दूसरे organism में जाता है. ये भी RNA वायरस है, लेकिन ये RNA वायरस अभी तक जो हमने RNA वायरस डिस्कस किए उनसे थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें प्लस या माइनस स्ट्रैंड RNA नहीं होता है. ये RNA से RNA नहीं बना सकता है. फर्स्ट इट हैज़ टू क्रिएट RNA टू DNA, और फिर वो DNA इसकी रेप्लिकेशन, इसकी मशीनरी में मदद करता है, इसकी कॉपीज़ बनाने में मदद करता है. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वायरस. ये RNA बेस्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वायरस है. द स्ट्रक्चर इज मोर और लेस सिमिलर. जो बेसिक कंपोनेंट है स्ट्रक्चर के वो इसमें भी वैसे ही हैं. आप देखिए यहाँ पर RNA प्रेजेंट है. RNA is present in the form of protein complex. A very interesting name has been given since they appear to have look like kissing each other. So this complex is called as kissing complex found in the RNAs. तो यहाँ पर RNA के मॉलिक्यूल प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स के तरह प्रेजेंट रहते हैं, एंड देयर इज अ कैप्सिड आउटसाइड दिस होल असेंबली, एंड देन दिस हैज़ अ लार्ज एनवेलप अराउंड इट इन अ स्फेरिकल मैनर दैट हैज़ गॉट स्पाइक्स. इसमें स्पाइक्स होती हैं. यू कैन सी हियर these glycoproteins named GP120, GP41. इस तरह के कई प्रोटीन इसके सरफेस पे हैं जो हमारे शरीर के अंदर इम्यून सेल्स के ऊपर अटैक करने में, उन पर बाइंड करने में मदद करते हैं. अब एक्चुअली होता क्या है, जैसे जैसे ये वायरस बॉडी के अंदर गया, ये सेल के अंदर इंटरनलाइज होता है बाय बाइंडिंग विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू दीज रिसेप्टर्स. ये जो ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं इनकी मदद से ये रिकॉग्नाइज होता है और फिर ये सेल के अंदर जाता है. नाउ इट हैज़ अ स्पेसिफिसिटी फॉर अ टाइप ऑफ सेल. हमारे शरीर में एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो इम्यून सिस्टम बनाती हैं, जो डिफेंस सिस्टम बनाती हैं. तो आप ऐसा समझ लीजिए कि एक ऐसा दुश्मन है जो सीधे आर्मी को ख़त्म कर देता है हमारे शरीर की. जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में आर्मी है, उस आर्मी पर अटैक करता है और उसी को डिस्ट्रॉय कर देता है. इट डजंट हार्म अदर सेल्स. सो दोज TH सेल्स, जिनको हम T हेल्पर सेल्स भी कह सकते हैं, these are the cells which are attacked by HIV. It goes inside them, replicates there by the process of reverse transcription. Then it makes lot of proteins and creates lot of viruses. और फिर वो वायरस जब रिलीज होते हैं तो वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है. और आप जानते हैं अगर हमारे शरीर में TH सेल्स खत्म हो जाएंगी तो दो ही तरह के सोल्जर हैं हमारे शरीर में, एक T सेल्स और एक B सेल्स. B सेल्स जो होती हैं वो ब्लड में घूमते हुए पैथोजन, बैक्टीरिया, इन सब ऑर्गेनिज्म से हमें बचाती हैं एंटीबॉडीज़ बनाकर. और T सेल जो हैं वो हमें उन ऑर्गेनिज्म से बचाती हैं जो सेल के अंदर चले जाते हैं, यानी कि वायरस या कुछ बैक्टीरिया जो इंटरनलाइज हो जाते हैं सेल के अंदर. तो T सेल उन सेल्स को ही मार देती हैं जो इन्फेक्टेड हैं. T सेल्स दो तरह की होती हैं, एक TH सेल्स और एक TC सेल. तो ये तो एक्चुअल सोल्जर्स हैं जो इन्फेक्टेड सेल्स को मारती हैं, लेकिन TH सेल हेल्प करती हैं बाय सम केमिकल सिक्रीशन, बाय ब्रिंगिंग अदर सेल्स इनटू दैट एरिया. तो ये हेल्प करती हैं, इसलिए इनको हेल्पर सेल कहते हैं. और ये न केवल TC सेल को हेल्प करती हैं बल्कि ये B सेल्स को भी हेल्प करती हैं एंटीबॉडी बनाने में.
तो एक तरह से ऐसे सोल्जर्स को अटैक किया गया इस वायरस के थ्रू जो पूरे इम्यून सिस्टम को मदद कर रहा है, और धीरे धीरे TH सेल्स का नंबर शरीर में कम होने लगता है. So those people who are infected by HIV, or they are said to have the disease called AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, they will have highly reduced TH cells. इनके शरीर में TH cells कम होती हैं और इनके शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है. The capacity to fight diseases is very poor. So people will not die because of the infection of this virus. But AIDS patient or HIV infected patient will die primarily due to the secondary infections. अगर इनको छोटा सा सर्दी जुकाम भी हो गया, निमोनिया भी हो गया या कोई फंगल इन्फेक्शन भी हो गया, that can't be defended by the body. They can die by a simple disease like pneumonia or गैस्ट्रोएंट्राइटिस और डायरिया. किसी सिंपल डिजीज से भी ये लोग मर सकते हैं क्योंकि इनके पास रेजिस्ट करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है. सो दैट इज द डिग्री ऑफ इन्फेक्टिविटी ऑफ HIV. इट्स ऑल्सो RNA वायरस. RNA वायरसेस के अगेंस्ट बहुत ही चैलेंजिंग काम ये है कि वैक्सीन्स और दवाइयाँ नहीं बनाई जा सकती क्योंकि मैंने बताया दे रैपिडली म्यूटेट, दे रैपिडली चेंज, दे कीप ऑन चेंजिंग देयर एक्सटर्नल एनवेलप प्रोटीन्स. एनवेलप प्रोटीन को बदलते रहते हैं, ये इनमें म्यूटेशंस होते रहते हैं. तो अगर आज कोई साइंटिस्ट इसको लेकर वैक्सीन बना भी दे तो हो सकता है कुछ टाइम में वो वायरस बदल जाएगा, अपने आप को चेंज कर लेगा और फिर वो वैक्सीन उस पर काम नहीं करेगी. तो ये एक चैलेंज है HIV के साथ कि उसकी अभी तक वैक्सीन या इफेक्टिव ड्रग्स भी नहीं आ पाई हैं. देयर आर सम ड्रग्स विच वर्क ऑन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. इसका जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उसको रोकने के लिए कुछ दवाइयाँ बनाई गई हैं जो कि टारगेट की गई इस प्रोसेस पर, विच कैन एलिविएट द symptoms of HIV infection in the early stage. हमने HIV, रेबीज और फुट एंड माउथ डिजीज वायरस के बारे में डिस्कशन किया. We started this video with the general description on what is RNA, how RNA is important as genetic material, and then we talked about type of classification. और हमने ये भी देखा प्लस और माइनस स्ट्रैंड में क्या डिफरेंस होता है with the help of prominent examples. So with this, I'll end this video and I hope you enjoyed. If you want to read more about this, you can refer to these books from S. Chand Publishing. And in case you don't have hard copies of these books, you can go to description box below and find link for the ebooks. I hope you are enjoying these videos, and if you are, then you can like, share and subscribe to this channel. You can press the bell icon for regular updates about upcoming videos. Thank you for watching. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.